Hello students, to continue the virtual classes, today I discuss about the linear chapters, the linear equation in two variable. So where the two things have the equations and variable. So what do you mean by the equation? An equation is a statement that assesses the equality of the two expressions. Then means the only the statement with equality. Any statement given by the equality is called the of expression is called the equation. Just like the ax plus b equals to 0 means that's the expression. Equality is by the 0, at least 0, either with the other numbers also, but एटलीस्ट जीरो मतलब एक इक्वेशन आप उसी को कह सकते हो, एक वैसा स्टेटमेंट जिसमें एक इक्वलिटीज हो, मीन्स एक इक्वल का साइन हो और उसके बाद एक कम से कम हो तो एक जीरो भी होना जरूरी है। अब यह बात आती है कि एक्सप्रेशन, व्हाट इज द एक्सप्रेशन? सो एक्सप्रेशन इज द फाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंबल्स, जस्ट लाइक द सिंबल्स that is the well form according to the rule. Means अब anyone say that कि a number 5 times of number exceeds the 5 times of number exceeds 5, so that is the expression. जैसे कोई कहा कि एक सिंबल, एक एक्सप्रेशन लिखने के लिए कि एक नंबर है जो कि उसको अगर 5 टाइम्स करके उसमें अगर 5 ऐड करते हो तो क्या आएगा, तो ये हो गया उसका एक एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशंस का अब यहाँ पे आता है लीनियर इक्वेशंस में कि अगर एक्सप्रेशंस का जो डिग्री है, जैसे डिग्री मींस व्हाट, द मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर of any variable in expression or equation be called degree. So the linear equation, the equation have the degree 1. अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है और इक्वेशन है जिसका डिग्री 1 है तो उसको हम लोग कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन। वेयर द वेरिएबल, also use the variable. Variable means what? Variable means the quantity which the value will be changed. It is called the variable. Means you just any assigning, if x, y, z, any name or anything, where the assign the value by you or finding by the expression is also is the variable. Constant is that the whole number, natural numbers, that's the number will be the constant, or any alphabets or any name also be they assigned as the variable. अब किसी के नाम को भी आप वेरिएबल असाइन कर सकते हो, जिसमें भी आप कुछ भी असाइन करते हो वो दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल. सो वेयर द इक्वेशन इज दैट स्टेटमेंट इक्वलिटीज आर कंपल्सरी. We know the very well what is the expression and what the linear equation. But today I will discuss linear equation as the form of the ax plus b is equal to 0.
and then here the only one value where the a, b and x, where a and b be the constant. Here condition is that if ax plus b is the equation where a not equal to 0, that's the condition. Ax plus b is equal to 0 is the format for the linear equation, but condition is that where the a cannot be 0. if a be 0, अगर a 0 कर दोगे तो ये कभी भी एक एक्सप्रेशन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा. कैसे? देखो 0x plus 5, so 0 into x is equal to 0 और so value is that 5 बराबर 0, so that is the not the equation. So where the discuss about the linear equation of the two variable means if ax plus by plus c equals to 0, that's the format where a and b not equals to 0. The condition is that if the ax plus by plus c equals to 0, but a and b cannot be 0. अगर आप यहां से देखो कि अगर a और b में से कोई भी एक 0 कर देते हो, किसी को भी आप 0 करोगे, if a is equal to 0, then 0x plus by plus c is equal to 0. So we finally written that change into the one variable. But today discuss about the linear equation in two variable, not in a one variable. So where the ax plus by plus c is equal to 0 or a and b not equal to the 0. In previous classes in number systems where the represent as the if ax plus b बराबर 0 form, just like the 5x plus 3 बराबर 0, that is the linear equation in one variable. So we written that 5x is equal to minus 3, so x is equal to minus 3 by 5. So that's the representation of the minus 3 by 5 on the number line 0, 1, minus 1, minus 2 and 1. So minus 3 by 5 is a proper fraction. So we written the represent on between the 0 and minus 1. So minus 1 by 5, minus 2 by 5, minus 3 by 5. We represent the x because that the only one variable. So one variable you just assign as that the form in a previous classes. आप ऐसे जो है ना previous classes में आप assign कर पाते थे. But today discuss about the linear equation in two variable. ठीक है? Linear equation in two variable means 5x plus 2y plus 0 या
5 बराबर 0, दैट्स द इक्वेशन। So where the what the solution? So 5x plus 2y is equal to also written by minus 5. So 2y is equal to minus 5 minus 5x and y is equal to minus 5 minus 5x by 2. So in linear equation in two variable we also as the form of the each other, we cannot be find the any value. So next questions, if the 2x minus 3 बराबर 5y और 2x minus 3y और 2x minus 3y बराबर 5। सो 2x minus 5 बराबर 3y, सो y बराबर क्या 2x minus 5 by 3। सो व्हाट द वैल्यू, तो वैल्यू क्या आया, ना x का वैल्यू आया ना y का वैल्यू आया। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि एक लिखते हैं क्वेश्चंस में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द 5 वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का 5 वैल्यू निकालो आप। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, x y, तो अब यहाँ पे हम लोग एक का वैल्यू असाइन कर देते हैं कि लेट x इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर और द in a whole number either positive or negative also we take the value. If we value of the 0, x का value 0, the whole term of the 0, then minus 5 by 3. If 1, if 1 then 2 into 1 2 minus 5, if the value 2 into 1 minus 5 by 3, so 2 minus 5 by 3 means minus 3 by 3 is equal to minus 1. Again the put the value of minus value of the x का value is the value of 3, तो 3 into 2 minus 5 by 3, so 6 minus 5 by 3 is equal to 1 by 3, तो इसी value the 3, so the value is 1 by 3. So the any value are assigning with the putting the value of so that's the finding the value if the expression are the given. If the putting the any value, then assign the value of that लेकिन यहाँ पे क्या, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसमें आपको खुद से कोई भी वैल्यू आपको पुट करना है, लेकिन क्या करना है ये यहाँ पे फ्रैक्शंस में नहीं आए, क्योंकि इस डाटा को फिर हम लोग अगर चाहते हो तो ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, केवल आप किसी का वैल्यू पुट करके कैसे आप असाइन कर सकते हो उसकी प्रैक्टिस करनी है। कि कोई भी एक्सप्रेशन को हम जनरली क्या करेंगे कि उसको y का वैल्यू आप असाइन कर फाइंड करना, कोई भी एक्सप्रेशन हो उसमें क्या होगा कि x का वैल्यू आप पुट करोगे तो अपने y का वैल्यू असाइन होते चला जाएगा।
अब अगर उसमें x का वैल्यू अगर आप लेना चाहोगे तो उसमें क्या होगा, y का वैल्यू पहले पुट करोगे फिर x का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं कि x का वैल्यू पुट करते हैं तो y का वैल्यू अपने आप आते चला जाता है। उसमें क्या करना, सिंपल यहाँ पे उसका वैल्यू को पुट करो एक इक्वेशन में जो आया आपने असाइन किए हो, और उसके बाद में उसका वैल्यू आते चला जाएगा। ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, इसी तरह का कोई भी एक्सप्रेशन आप ले सकते हो। जैसे जैसे था एक 2x माइनस 5y इक्वल टू 7। फिर क्या 2x माइनस 7 बराबर 5y और y बराबर 2x माइनस 7 बाई 5। अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लो। x y, अब देखो अगर हमने x का वैल्यू 1 डाला, इसको सॉल्व करो। 2 इंटू 1 माइनस 7 बाई 5, सो 2 माइनस 7 बाई 5 इक्वल टू माइनस 5 बाई 5 इक्वल टू माइनस 1। तो आप x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो क्या हो गया, यहाँ पे माइनस 1 आ गया। अब फिर अब x का वैल्यू दूसरा कुछ पुट करो, और जैसे हमने यहाँ पे डाला x का वैल्यू 6, so 2 into 6 minus 7 by 5, 12 minus 7 by 5, so 5 by 5 is equal to 1. If the value of 6, value of 1. So if you just, because the finding the whole number, it is the help for the drawing the graph. In the next classes we just do practice first of all, then we next class will discuss about the how to represent that the data in a graph. So अभी आप लोग कोई भी इक्वेशंस को लेके उसका वैल्यू को आप फाइंड आउट करके प्रैक्टिस करो, एक दो डाटा आप बना के रखना। अब इसी चीज को अगर आपको ग्राफ में प्लॉट करना होगा तो सिंपल से जैसे कोऑर्डिनेट में आप करते थे 0 1 2 3 4 5 6 minus 1 minus 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 minus 1 minus 2 minus 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। सो इसी तरह का तो 1 का 1 minus 1 6 1 6 1। इसके बाद आप क्या करना है, सीधे इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह इसको असाइन कर देना है। इसमें एक फिर आता है कि इफ x इक्वल टू 0 या 2, तो क्या होगा, x का वैल्यू क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो इसको हम ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, y बराबर 2, तो ये ऐसे जाता है इन टू वेरिएबल में। और इसी को अगर वन वेरिएबल में असाइन करना होगा तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो खाली 0, कि अगर x का वैल्यू 2 अगर पुट करना है तो यहाँ पे हो गया 1 और 2, ये हो गया 1 वेरिएबल में और ये हो गया 2 वेरिएबल में। तो पहले इसका प्रैक्टिस करो कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उससे x और y का वैल्यू, और वो भी क्या होगा, होल नंबर में ही, नेचुरल नंबर में ही आपको इसको होल नंबर में आना चाहिए। इधर भी तो प्लस और माइनस हो सकता है, इसको आप इंटीजर्स भी कह सकते हो, लेकिन फ्रैक्शंस में नहीं आना चाहिए। तो आप इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का पहले डाटा तैयार होगा, जब डाटा बन जाएगा तो फिर इसको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको कन्वर्ट कर देना, और कुछ नहीं है इस चैप्टर्स में। फिर इक्वेशन बनाने के लिए है कि कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे। जैसे कोई भी इक्वेशन अगर दिया होगा
जैसे क्वेश्चंस किया ना, ऑटो रिक्शा फेयर इन द सिटी इज द 10 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड एट द रेट ऑफ द 4 किलोमीटर फॉर द subsequent the distance travel. तो व्हाट द एक्सप्रेशन एंड ड्रॉ द। तो पहले बोला क्या कि पहला जो 1 किलोमीटर का जो फेयर होगा वो 10 रुपीज था, और नेक्स्ट तो इसको आप देखो, या आप असाइन कर लो कि फेयर 10 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, travel x kilometer, suppose that. So what the equation? If the travel x kilometer means x minus 1 का जो फेयर होगा वो 4 के रेट से और प्लस 10 इक्वल टू y। टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो y में असाइन करो, तो जितना डिस्टेंस वो चला है उससे 1 किलोमीटर कम का पैसा देंगे, और 10 किलोमीटर पहला किलोमीटर का तो 10 रुपीज वो ऑलरेडी असाइन कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा देखो 4x माइनस 4 प्लस 10 बराबर y। तो 4x प्लस 6 बराबर y, एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू उसका हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि अगर वो देखो, अब यहाँ पे 1 किलोमीटर जाता है तो कितना होगा, तो 4 इंटू 1 प्लस 6 बराबर 10। अभी हो गया x y। अगर हमने 1 किलोमीटर चला तो क्या 10 रुपीज पे किए। अब यहाँ से देखो, अगर 2 किलोमीटर चलागा तो 4, यहाँ पे क्या था देखो 2 किलोमीटर चला था, x किलोमीटर था, तो 4 इंटू 2 प्लस 6 बराबर 14 रुपीज। तो अगर 2 चलेगा तो ये 14 रुपीज देगा। अब देखो अगर 3 किलोमीटर चलता है तो क्या होगा, 4 इंटू 3 प्लस 6, तो 4 से 12 और 6 18 रुपीज पे करना पड़ेगा उसको। तो क्या होगा, पहला जो पहला किलोमीटर के लिए 10 रुपीज पे किया, सेकेंड किलोमीटर में 2 किलोमीटर चलता तो 1 किलोमीटर का पैसा तो 10 रुपीज, फिर दूसरा 1 किलोमीटर का दाम क्या था 4 रुपीज। तो इसी तरह से जो एक ग्राफ बनेगा, आप इसको पहले डाटा बना लोगे, उसको इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इक्वेशन बनाने के लिए प्रैक्टिस करो, उसके बाद उससे डाटा एनालिसिस करो कि कैसे हम डाटा उसको ला सकते हैं। जब डाटा आ जाएगा तो फिर आप उसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत आसान है, जो हम लोग ऑलरेडी आप जानते हो, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पहला है इक्वेशंस को डिराइव करना। इक्वेशन जब बन जाएगा तो उसके वैल्यू को निकालना। आप x का वैल्यू कुछ भी लोगे, उससे रिलेवेंट उसका जो वैल्यू होगा y का वैल्यू आ जाएगा, और उस y के वैल्यू से फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम लोग उसका डाटा को ग्राफ पे बनाना चाहे तो ग्राफ पे बना सकते हैं। चलो ठीक है, ओके बाय।